only. Okay, that's great. Quite audible. Somebody has written your voice is quite audible. Thank you so much for your feedback. Yes, sir, you're audible. You can. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, so let's call this meeting to an order. You will be able to see me by the end of the session. Otherwise, I'll not be able to concentrate on the presentation part. So by the end of the session, you shall be able to see me. So I beg your pardon also. My sincere apology that you will not be able to see my face during the presentation, though I shall try to switch on the video part. So uh, let me share the presentation part. Dear participants, if the screen is visible to you, could you please give me a hint there in the chat box? Yeah, so this is a venture of Patliputra Sahodaya Complex, Patna. This capacity building program has been specially designed for the teachers, and the title is Happy Classrooms. And I'm the presenter for the day, and my name is Rajan. Those who have just joined, let me tell them my name. So for the next 50 minutes, we shall be discussing some of the ways and methods how to make our classroom a happy classroom, how to create happiness there in the classroom, how to make our school a school rather. So for that, we need to be extra cautious there. We need extra those extra efforts are on the part of management. So altogether, we shall be discussing some of the ways, some of the methods, some of the techniques which will help us in creating a happy environment there in the school. So let me begin with it, the slideshow. Uh, let's discuss the objectives of today's session. The very first objective is to develop self-awareness and mindfulness amongst teachers. Sometimes teachers, they are brimming with energy, they are brimming with some competencies, but they cannot come out of their comfort zone. They don't want to change themselves. So for that purpose, means this session has been arranged so that the teacher they will be aware about their competencies, about their powers rather. So I shall be acting as Jamvant. You must have heard about Jamvant. You must have read about Jamvant in Ramayana. Jamvant reminded Hanumanji about his powers. So I'll be trying my level best to be Jamvant for the day today. Uh, uh, Means I shall remind the teachers. I shall remind the teachers about their forgotten powers. So this is one of the objectives of today's session. Teacher they will be aware about their powers. They will develop mindfulness, and that will contribute towards happiness. To inculcate skill of critical thinking and inquiry in the teachers. Teachers sometimes they remain in their comfort zones. They never come out of it. They think that we are the best, and we don't want any change. Now we cannot be changed at all. The senior teachers, especially, I really beg your pardon. They think that sorry, good evening, sir. Why are you writing? Sorry. Okay, please bear with my words here, and please be patient for the next 30 minutes. I'm sure that this session will contribute a lot so far as your professional growth is concerned. So the one more purpose, the objective is to inculcate skill of critical thinking and inquiry in the teachers, and then to enable learners to communicate effectively and express themselves freely and creatively. So we shall also be discussing some of the ways and methods and some of the rubrics, means how to communicate effectively with students, their parents, with their colleagues, their management. So we shall also be discussing some of the ways so that the classroom, the school becomes a happy classroom. You must agree with me, you must agree completely with me that a happy teacher can create a happy classroom. So the key of the happy classroom remains or lies with the teacher. So that's why this session has been arranged for the teachers, especially to enable teachers to understand their expectations in relationships. Sometimes we have high expectations. Sometimes we have unrealistic expectations also.
So we shall try our level best to understand those expectations from parents as well, to develop empathy also. Empathy means when we put our feet into the shoes of others, we are empathetic then, and ensure healthy relationship with parents, with family, peers, and colleagues. I have added one more word here, that is family. A happy teacher, if he is not happy in the family, if he is not able to make a balance, strike a balance between the professional front and personal front, then what will happen? He will not be happy, and then he will not be able to contribute. He will not be able to bring an element of happiness there in the classroom. I'm sure that I'm audible to you and my words are reaching to you. Okay. So let's start a movement together of teachers who teachers. Okay, I'll be switching to Hindi also. Means I'm getting some requests also. The purpose is not to improve your communication skills here. I have not been given this task to improve your communication skills or your vocabulary, but means my purpose is to share my message, to share my expertise, to share my ideas with you. So I shall also be taking help of Hindi here. So, with your kind permission, let me embark on this very journey. Let's start a movement together of teachers. Who are those teachers? Mhm. The teachers who love their jobs. So, this session is meant for those teachers who love their jobs, who remain happy all the time, and for them their job is, or their profession is of utmost importance. जिनको प्यार है अपने प्रोफेशन से, जो अपने व्यवसाय को, इसको व्यवसाय ना मानकर इसको एक सेवा मानते हैं, जिन एक सेवा भाव से स्कूल में आते हैं, जिनको अपने वर्क प्लेस से प्यार है, ये सेशन उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। लव देयर लाइव्स ऑल्सो, जिनको अपनी जिंदगी से प्यार है। ऐसा नहीं है कि बड़ा बेमन से आप स्कूल जा रहे हैं, या फिर आकर आप कहते हैं ये भी कोई जीना है, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। ये इस तरह का हम लोग जो टीचर्स हैं, जो नकारात्मकता से भरे रहते हैं, जो दो टीचर्स और द पीपल हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, हु लुक एट द नेगेटिव साइड ऑफ द थिंग्स, हम लोग उनकी आत्माओं को जगाने का प्रयास भी करेंगे आज। आर पॉजिटिव ऑल्सो, दोज हु लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स। अगर अगर अंधेरा है किसी रूम में, तो वो अंधेरे को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, वो एक ऐसा तरीका हमें बताते हैं कि लेट्स लाइट अ लैम्प। तो जो लैंप लाइट करने वाले टीचर्स हैं, जो जो हमें रास्ता दिखाते हैं, ये सेशन उनके लिए भी है। आर होल, द टीचर्स हु आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स, द टीचर्स हु टेक रिस्क्स एंड सेल फॉरवर्ड। ये सीबीसी का एंडेवर है, ये अपना पाटलिपुत्र सहोदया जो अपना कॉम्प्लेक्स है पटना में, उसको भी साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि वो टीचर्स के लिए टाइम एंड अगेन इस तरह की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं वो लोग। सो द पर्पस इज टू अपस्किल द टीचर्स, टू अपस्किल द टीचर्स एंड to update the teachers so that they come up with certain ideas, certain novelty, and they contribute for the betterment of the students, for the betterment of the school. So purpose यही है। जो रिस्क लेते हैं, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, तो मुझे लग रहा है हैप्पीनेस का एलिमेंट मिसिंग रहेगा। गेट रियल ऑल्सो, जिनको अपनी खामियां भी पता है, अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी पता है, जो अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। ग्रो कंटिन्यूअली, जो अपनी ग्रोथ के को लेकर भी काफी चिंतित भी रहते हैं, आशान्वित भी रहते हैं, एंड दे कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर ऑल्सो, दे टेक आइडियाज फ्रॉम अदर टीचर्स। वो ये वर्कशॉप्स भी करते रहते हैं, सो दैट दे कैन heal themselves, they can update themselves, and know and own their needs also, and thrive as well. So this is the movement. This workshop will serve as a catalyst for those teachers who have these qualities or who believe in such type of attributes. So joy is a permanent thing, or it's a temporary thing? What do you say, teachers? Could you please write a single word for joy there in the class, in the chat box? फटाफट लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉय? क्या समझते हैं आप? मतलब आपकी डेफिनेशन क्या है जॉय की? आपके अकॉर्डिंग जॉय की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज जॉय अकॉर्डिंग टू यू? जॉय मीन्स हैप्पीनेस हियर। व्हाट इज इट? Could you please write a single word for joy? Happiness. Somebody has written happiness. Sita Kumari has written happiness. I'm able to see it. Afreen, dancing. State of peaceful mind. Wow. Eternal happiness. Okay. Everything we do is
Food is happiness for good. Happiness, joy means happiness, state of mind, peaceful mind. Wow. Rahul, enjoy every moment. Satisfaction, great. Wow, I'm so happy to have a group bunch of teachers there on the other side of the screen, though I'm not able to see them clearly. मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, but I'm so happy that people they are responding to my questions, my queries. इसका मतलब आप ये एक एहसास भी है कि आप लोग alert हैं, active हैं. Thank you so much, dear educators. So this thank you is also kind of happiness for me. देखिए हर पल को जीना somebody has written मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है कि नेट ढंग से चल जाए सही तरीके से और मेरा प्रेजेंटेशन आप तक पहुंच जाए मेरी आवाज पहुंचे सपोज कुछ डिस्ट्रप्शंस हैं बीच में डिस्टरबेंस है पीपीटी नहीं चल रहा है नेट नहीं चल रहा है तो व्हाट हैपेंस मुझे भी कष्ट होगा मेरी हैप्पीनेस छू मंतर हो जाएगी आप लोगों का भी नेट नहीं चल रहा यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन क्लियरली तो दैट जॉय विल बी मिसिंग चलो लेट मी रिफ्रेश द क्वेश्चन आप बताएं मुझे एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या होती है लेट्स बी ह्यूमरस हियर थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करिए एक टीचर के लिए व्हाट इज हैप्पीनेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस फॉर अ टीचर कुछ मुझे सेटिस्फेक्शन शेयरिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ हैप्पीनेस रंजना इज राइटिंग या बिल्कुल सही है टीचर के लिए क्या है हॉलीडेज वाह ग्रेट व्हेन स्टूडेंट रिस्पॉन्ड ऑल्सो हॉलीडेज तो सबसे बड़ा टीचर के लिए एक वरदान साबित होता है जी अगर 8 पीरियड तक स्कूल चल रहा है एंड प्रिंसिपल अनाउंसेज आज 6 पीरियड के बाद छुट्टी हो जाएगी द हैप्पीनेस ऑफ द टीचर नोज नो बाउंड्स देन बल्लियां उछलते हैं टीचर्स अटेंशन ऑल्सो एबल टू मेक या सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स कुछ और अनयूजुअल चीजें बताइए अगर आपका एडजस्टमेंट पीरियड नहीं लगता है सपोज यू हैव ओनली 5 पीरियड्स टुडे 3 पीरियड आप सोच कर आते हैं कि आज तो लगना ही है मेरा अरेंजमेंट पीरियड और नहीं लगता उस दिन तो somebody has written गुड आफ्टरनून अभी ज्वाइन किया होगा शायद उन्होंने या नो सब्स्टिट्यूशन गुड गुड तो टीचर के लिए छोटी छोटी खुशियां हैं टीचर को आप अप्रिशिएट कर दीजिएगा आई एम श्योर दैट सम प्रिंसिपल्स आर आल्सो देयर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन हु आर joining who have joined as attendees there please appreciate your teachers appreciation the element of appreciation is missing dear educators अगर किसी टीचर को आप अप्रिशिएट करते हैं उसको बताते हैं कि दिस टीचर इज वन ऑफ माय बेस्ट टीचर्स ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ द स्कूल आई थिंक वो हैप्पीनेस टीचर के अंदर ऑटोमेटिकली आएगी so I request my colleagues there, my friends there, my educators there, those who are the attendees there, please appreciate the efforts of your teachers, and I'm sure they will be able to create a happy classroom. वो अपने आप आएगा. ये आज का सेशन थोड़ा सा अलग होने वाला है. मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों पर नहीं बात करूंगा. I shall not talk about the psychomotor domain, affective domain. किसी पर नहीं बात करेंगे हम लोग टेक्निकल टर्म्स पर बात ही नहीं करेंगे I shall try to incorporate encouragement. Pooja has written. Good. So, encouragement. तो टीचर कैसे अपने क्लासरूम को हैप्पी क्लासरूम में कन्वर्ट कर सकता है हम लोग उन पर ज्यादा चर्चा करेंगे यार हमारा फोकस ही उन पे रहेगा ओके तो हम लोग ज्यादा थियरी पर ना बात करके हम लोग प्रैक्टिकल चीज छोटी छोटी चीजें हैं हैप्पीनेस कहीं से खरीद के नहीं लाई जा सकती हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन अगर टीचर खुश है मुझे लग रहा है टीचर मुस्कुराता हुआ कक्षा में प्रवेश करता है तो बच्चे ऑटोमेटिकली खुश होंगे अगर एक प्रिंसिपल खुश है मॉर्निंग असेंबली में ही ग्रीट्स द स्टूडेंट्स ही ग्रीट्स द टीचर्स आल्सो एंड ही अगेन मोटिवेट्स देम एंड अप्रिशिएट्स देम तो आई थिंक ऑल टुगेदर वी शैल बी एबल टू क्रिएट हैप्पी इन्वायरमेंट देयर इन द स्कूल ये हम सबका एक साझा प्रयास है अकेला ये नहीं कि हंसते हुए आप क्लास में जा रहे हैं आप मुस्कुरा रहे हैं ऑल द टाइम दिस इज नॉट हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज समथिंग डिफरेंट उन पर हम लोग बात करने वाले हैं लेट्स सी व्हाट इज हैप्पीनेस द जॉयफुल टीचर देखिए मैंने पहले भी कहा आपको जो हैप्पीनेस की चाबी है ना वो टीचर के हाथ में है जी ये मान के चलें आप मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है मैनेजमेंट कैन प्रोवाइड यू द एमिनिटीज द रिसोर्सेज आपको स्मार्ट क्लास दे दी आपको बढ़िया एसी रूम दे दिया फैंस दे दिया आपको और सारी एमिनिटीज हैं शानदार आपकी एटीएल लैब दे दी आपको कंप्यूटर लैब है आपकी बेहतरीन एसी वाली चाबी किसके हाथ में है जो फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं वो कौन है हम लोग हैं हम टीचर्स हैं
और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है अगर हम लोग करें। केवल इसको इस दृष्टिकोण से ना देखा जाए कि आज तो हम लोग है ना, ये केवल सर्टिफिकेशन के लिए हम लोग पाटलिपुत्र सहोदय का ये सेशन अटेंड करने आए हैं। नो, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम एक दूसरे से बहुत सारी चीजें लर्न कर लें। दो आई एम नॉट एबल टू सी यू क्लियरली देयर, बट आई एम हैप्पी। ज्योति झा, एक दूसरे को समझना और सपोर्ट करना ही हैप्पीनेस है। क्या बात है, ज्योति झा मैम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। थैंक यू मैम, आपका पर्सपेक्टिव का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई एम सो हैप्पी द टीचर्स देयर। रंजना रचना झा, वी शुड टेक अवे। वाओ, गुड गुड, थैंक यू सो मच। एक दूसरे के प्रयासों को है ना यहाँ पर सराहते रहिए प्लीज। हम लोग एक दूसरे को, वी मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ ईच अदर। हमारे जो टीचर है, साथी लोग हैं अपने स्कूल में, हम लोग उनकी कोर कॉम्पिटेंसेस को जाने, हम लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। हमारी पूरी लाइफ गुजर जाती है कई बार। सपोज अ टीचर स्पेंड्स 20 years इन अ पर्टिकुलर स्कूल, सो ही नेवर ट्राइज टू ओपन अप। वो बात ही नहीं करना चाहता कई बार। उसको लग रहा है कि मैं अपने, अगर मैं ओपन अप होऊंगा तो पता नहीं मेरा मिस यूज होगा। ऐसा ना सोचें, हम एक दूसरे को समझें, रिस्पेक्ट दें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें। जो सीनियर टीचर्स हैं वो जो जो अभी जो न्यूली अपॉइंटेड टीचर है, उनको एक बड़ा एक्सेप्टिंग सा एनवायरनमेंट दें। एक बड़ा उनको अकोमोडेट करें कि आइए भैया, हमारे पास 20 साल का अनुभव है, आप नए आए हो, लीजिए ये काम करिए आप। आपको क्लासरूम कंट्रोल सिखाते हैं हम लोग। बच्चों से कैसे अच्छे संबंध बनाए जाते हैं, हाउ टू स्टेब्लिश कनेक्शंस विद स्टूडेंट्स, लाइक मैं सिखाता हूँ आपको। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 20 years। निर्मला मैम यस कह रही हैं, थैंक यू निर्मला मैम। ओके, सो द जॉयफुल टीचर इज रिलैक्स्ड, पर्सनेबल एंड रीअश्योरिंग। वो दुखी नहीं है, उसके चेहरे पर वो मुर्दानगी नहीं छाई हुई है, वो जिंदा लाश की तरह नहीं चल रहा है। प्रिया मैम इज राइटिंग राइट सर। सरप्राइजिंग एंड क्रिएटिव, उसके जो क्लासरूम इंटरेक्शन है ना, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। नहीं तो आते हैं बच्चे अपने आप कर लेते हैं कि ओए ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 34, चलो आज अब बच्चों ये वाला चैप्टर करेंगे। ये नहीं है, मीन्स प्रिडिक्शन नहीं है, समथिंग न्यू है, सरप्राइजिंग सा है, वो क्रिएटिविटी है उसके पास। आप सब में है ये चीजें। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ टुडेज सेमिनार, व्हाट डिड आई से, दैट आई एम एक्टिंग लाइक जामवंत हियर। आप लोगों के पास सारे ब्रह्मास्त्र, सारे अस्त्र शस्त्र, सब कुछ है आपके तरकश में। बट करना क्या है, उनको यूज करना आना चाहिए बस। उनका प्रयोग करिए, जंग लग जाएगा नहीं उनपे। तो आज का ये जो एक हमारा प्रयास है, जो 1 घंटे का हमारा सेशन रहेगा, वो इसी पर फोकस्ड है। creates a desirable social and emotional environment. You could see there in the pictures, the student, they are happy, they are creating something. Picture देखिए, very first picture, the teacher is involved here. So the involvement of the teacher is very much required अगर हम लोग चाहते हैं कि क्लासरूम हैप्पी क्लासरूम बने। हैप्पी क्लासरूम का मतलब फिर नहीं है कि आपने क्लासरूम में अपना फोन जोड़ के जोक सुना रखे हैं। नो, और वो टीचर हैप्पी कैसा रहेगा। मैं आई वुड रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेटर्स, आई वुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स हु आर देयर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन, काफी मात्रा में जुड़े हुए हैं हमारे साथ ये लोग, आई एम नॉट एबल टू सी देम क्लियरली। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने टीचर को खुश रखिए, क्लासरूम अपने आप खुश रहेगा। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए टीचर को कुछ। टीचर्स may be low salaried, but the element of motivation is missing. There's dearth of motivation, there's paucity of motivation. अगर ऐसा होगा, मुझे लग रहा है, तो हम लोग all together we shall be able to create a happy classroom. And if the classrooms are happy, the school will remain happy. The school is happy, the society is happy, families are happy, and all together we shall be। मुश्किल काम नहीं है। आप सोचो कि सर केवल मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, होगा। आइए, आउटकम्स क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। सुपीरियर सोशलाइजेशन ऑफ द लर्नर, जो लर्नर है हमारे क्लासरूम में, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। देखिए, वेन एवर वी रिमेंबर आर स्कूलिंग टीचर्स, whom do we remember, हम लोग क्या मिस करते हैं। चंचल श्रीवास्तव, कुड यू प्लीज राइट। निवेदिता, आप लिखेंगे प्लीज। हम लोग अपने स्कूल सिस्टम को जब भी मिस करते हैं, हम लोग किस चीज को मिस करते हैं, कुड यू प्लीज राइट। डियर टीचर्स, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट सिंगल वर्ड। हम लोग क्या चीज याद करते हैं जब हम लोग अपने स्कूलिंग को याद करते हैं, अपने स्कूल टाइम को। फ्रीडम ऑफ क्लासरूम, नो नो नो, चलो चलो बताइए, बताएं प्लीज। फ्रेंड्स को याद करते हैं, प्ले ग्राउंड को याद करते हैं, वेरी गुड। फ्रेंड्स को, भारती देवी इज राइटिंग विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, कलश, गेम्स को याद करते हैं। टीचर्स को याद, अपने टीचर्स को, नवीन प्रकाश इज राइटिंग, या देखिए, वी हार्डली रिमेम्बर वो कौन से चार्ट लेकर आते थे, उनके पास क्या बोर्ड होता था, वो लोग हमें चॉकलेट देते थे, क्या करते थे, वो नहीं है। टीचर्स बचपना भी याद करते हैं, somebody has written।
या क्लासरूम याद करते हैं हम लोग। टीचर, देखिए, whenever we remember our education system, we remember our teachers. So the teacher is the heart of the education system, my dear friends. आपको मैं बताना चाहूँ, टीचर ही है। किसी स्कूल में आप कितनी शानदार फैसिलिटीज दे दीजिएगा आप, अगर उसमें टीचर अच्छे नहीं हैं, अगर टीचर अकोमोडेटिंग नहीं है, अगर टीचर दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली विद द स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन? स्कूल की शाख पे क्वेश्चन मार्क होगा कि यार इसमें सुविधाएं सारी हैं, सब कुछ है, बट टीचर्स अच्छे नहीं हैं। द टीचर दे आर वेरी हार्श। सो या प्रमीला कुमारी, फ्रेंड्स एंड टीचर्स, बहुत लिटरली, थैंक यू। सीता कुमारी इज राइटिंग टीचर्स। अपने टीचर का स्नेह, सर के द्वारा डांटा हुआ, सोशल एनवायरनमेंट, संतोष कुमार, राजीव रॉय, स्पोर्ट्स, हाँ बहुत सारी चीजें हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर, ग्रेट। So develop empathy in learners, joyful learning, promotes mutual interaction and motivation also, and increases concentration, curiosity and openness. मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग ऐसे टीचर बने कि बच्चे जिनका बेसब्री से इंतजार करें, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। या इट्स नॉट अ हरक्यूलियन टास्क। ये बहुत बड़ा कोई डॉन्टिंग टास्क नहीं है। हल्का सा हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। वी मस्ट tailor our presentation as per the needs of our learners there in the classroom. स्टाफ रूम में हम अपने साथी जो लोग हैं, कॉलीग्स हैं, उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर लें अपने। हमारा मैनेजमेंट से बात करने का लहजा और तरीका बदल जाए। हम कम्युनिकेट करें। हम ऐसा ना कि हम लोग अपने अपने ही अलग रूम में चले गए, हम लोग अपने सेल में चले गए, हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हैप्पी क्लासरूम नहीं होगा, चाहे हम इतने कितनी दोस्तों के साथ खेलना, शिक्षक के उत्प्रेरक शब्द, थैंक यू। तो हमारा काम क्या बन होता है? वी मस्ट बी दोज टीचर्स हु प्रमोट और हु इंक्रीज कंसंट्रेशन, क्यूरियोसिटी एंड ओपननेस। हाउ मेनी ऑफ यू हैड दिस वेरी थिंकिंग इन माइंड जब आपने पढ़ाना शुरू किया था? आपको क्या लग रहा था टीचिंग ऐसा? हाथ एक एक थम्स अप करके मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताएं, फटाफट करिए, हमारे पास टाइम की कमी है थोड़ी, हमें 5 बजे वाइंड अप करना है, तो हमारे पास आधा घंटा है, करीबन 35 मिनट है। कितने लोगों को लगा था कि टीचिंग इज लाइक दिस ओनली, एक लीनियर इक्वेशन वाली, लीनियर ऐसे सीधी सी लाइन, स्ट्रेट लाइन है, कुछ नहीं करना, जाके चेयर पे बैठ जाओ और अपना पढ़ा दो? ये भावना रही होगी हमारी। वाह, श्वेता पाठक इज राइटिंग, अनमोल इज राइटिंग, प्रमीला, विवेक, संतोष कुमार, आई एम गेटिंग, या गेटिंग थम्स अप लगा था। चलो, कितने नोट एट ऑल? नो सर, निवेदिता कह रही नहीं लगा था, चलो। कितने लोगों को बाद में लगा था कि भैया लाइफ तो चेंज हो गई है, इस तरह से हो गई है? आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ टीचिंग, कितने दिनों के बाद लगा था कि थिंग्स हैव बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उलझ के रह गई जिंदगी? उलझ के कितने साल के बाद लगा था? सुनीता कुमारी इज राइटिंग 6 मंथ्स, सुलेखा, नो सर, 5 मंथ्स, 1 ईयर, अपर्णा, कुमारी, इंदु वाला, टीचर का जीवन बहुत ही संघर्षशील होता है, बिल्कुल सही है। आलोक कुमार जी को 1 साल, 2-3 मंथ्स लगता है, बहुत सारे काम आ जाते हैं। जब 12th बी में जाना होता है ना, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ के जाते हैं कि हे भगवान रक्षा करना। 12th बी के बड़े राउडी स्टूडेंट्स हैं। गणेश कुमार को कभी नहीं लगा। गणेश कुमार बहुत बोल्ड टीचर हैं, प्राउड ऑफ यू गणेश कुमार जी। 15 साल के बाद रंजना मैम को लगा है, क्यों? चेंज आ गए बहुत सारे। श्वेता गुप्ता को 14 साल के बाद लगा है। प्रिया कौशल 2 साल, रविशंकर गुप्ता जी ने 2 साल में ही सरेंडर कर दिया। सुनीता कुमारी कोरोना के बाद बता रही हैं। चंद्रचर्या 2 साल के बाद, गुड विद हार्ड, या नेवर सर, संगीता सुनीति, ग्रेट, नहीं लगा आप लोगों को, चलो। कई बार ऐसा लगता है, समटाइम्स वी फील लाइक दिस, कि हम लोग ऐसे उलझ के रह गए हैं एंड देर इज नो वे आउट, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। असाइनमेंट्स हैं, हमारे पास पेपर ग्रेड करने हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड अस, वी आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट आईसीटी टेक्नोलॉजी इन आर टीचिंग। पेरेंट्स आते हैं, पीटीएम में हमारे पास पंगे हो जाते हैं, मैनेजमेंट के साथ हमारे कई बार बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं, लगता है, आई थिंक। लगा, ये भी लगा होगा। ओके, लेट्स डिस्कस कि ये चीजें क्यों होती हैं। पास्ट में क्या था? ट्रेडिशनल क्लासरूम्स थे, टीचर वाज द मेन रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
हमारे पास टीचर मेन सोर्स था। यू मस्ट हैव रेड अ पोएम बाय मैथ्यू आर्नल्ड, द बुलिश स्कूल मास्टर। सारा जो प्राइमरी फोकस टीचर के पास ही रहता था। इवन अपने अपने गांव में देखा होगा कि जो चिट्ठियां पढ़वाने के लिए भी हम लोग कहाँ जाते थे, चिट्ठी आती थी, पत्र आते थे, तो हम मास्टर के पास जाते थे। जो विलेज स्कूल मास्टर होता था उनके पास, बैंक के फॉर्म भरवाने हमें उनके पास जाते थे। प्रेजेंट में क्या हुआ है, क्लासरूम थोड़ा सा बदला था अपना, बट फ्यूचर में क्या होगा, थिंग्स विल बिकम एंटायरली डिफरेंट। रोबोटिक टीचर्स आएंगे हमारे पास। ये कहा जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमन टीचर्स। तो हमारा काम थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, हमारे पास काफी टेंशन हो जाती है, हम स्ट्रेस फील करते हैं। तो मुझे लग रहा है वो हैप्पीनेस का एलिमेंट हम लोग क्लासरूम में नहीं ला पाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने आप को अपग्रेड करना होगा। वी मस्ट अलाइन आवरसेल्व्स विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमें हमें बिल्कुल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ अपने का अलाइनमेंट करना है, हमें उसके साथ कदम ताल मिलाकर चलना है। प्रिपेयरिंग टीचर्स टू फेस 21st सेंचुरी क्लासरूम चैलेंजेस। आप पढ़िए नीचे जो ब्लैक लेटर्स में लिखा है, वी कैन नॉट कंटिन्यू टीचिंग विद द मेथड्स ऑफ द 19th सेंचुरी एंड होप to prepare our children for the 21st century. So, dear teacher, the change is required in order to make the classroom a happy classroom. That change is required. That paradigm shift is required. मैं फिर अपनी बातों को दोहराना चाहूंगा। एक हैप्पी क्लासरूम की चाबी, कुंदन कुमार जी, वो केवल टीचर के पास होती है। वो ताला उसी से खुलेगा, सौरभ जी। सो आप पुराने तरीकों को से निजात पाइए, उनको तिलांजलि देकर आगे बढ़िए, नए तरीकों को अपनाइए अपने क्लासरूम में, नई टेक्नोलॉजी को अपनाइए। आई एम श्योर 21st सेंचुरी स्किल इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। आदित्य कुमार, योगेश कुमार दीक्षित, विवेक कुमार, यस सर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। आपका ये इधर से ये यस सर आ रहे हैं ना, तालियां आ रही हैं, ये मेरी एनर्जी को फ्यूल कर रहा है लिटरली। I'm also a human being. I'm a teacher primarily. अच्छा लग रहा है मुझे कि I'm getting inputs from you people. एक जो 21st सेंचुरी टीचर है ना, उसके अंदर क्या क्या उससे उम्मीदें की जाती है कि वो लाइफ कोच रहेगा, वो एक थिंकर है, उसके अंदर पेशेंस है, वो एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट देगा हमें, वो रोल मॉडल है, कोच है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, वो केयर गिवर है, प्रॉब्लम सोल्वर है, गाइड है, फ्रेंड है, शेयरिंग है उसके अंदर वाली क्वालिटीज, सपोर्टिव है, वो अच्छा लीडर है, एडवाइजर है। सो एक नन्ही सी जान और इतना सारा काम। तो हम सबको भी ये सारी चीजें अपने अंदर, इन चीजों को लेकर आना है, वो बदलाव लाना है। If we are able to integrate all these attributes or qualities in ourselves, I think we shall be able to create a happy space, a happy classroom there in the school. राजेश कुमार श्रीवास्तव जी भी लिख रहे हैं, ये मोतिहारी से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका। सो एक टीचर के अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी बेहद जरूरी है, निहायत ही जरूरी है। तो डियर टीचर, बहुत मुश्किल काम नहीं है हैप्पी क्लासरूम को बनाना। आइए, 21st सेंचुरी जो एजुकेटर है उसके अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, लेट्स डिस्कस दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। जस्ट ए मिनट। वो अडेप्टर है, उसको अडेप्ट करना है जैसा भी माहौल उसको मिल रहा है। वो अच्छा कम्युनिकेटर है, वो लर्नर भी है खुद। ऐसा नहीं कि वो अपने आप को सोचे उसके अंदर स्नॉबरी है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, आई डोंट नीड दिस ट्रेनिंग्स। ये जो पाटलिपुत्र सहोदय करा रहे हैं, मुझे जरूरत क्या है, आई एम एन अकम्प्लिश टीचर, मुझे नहीं है जी इनकी जरूरत, नो। वो एक कांस्टेंट लर्नर है, वो विजनरी है, उसका एक विजन है अपना, वो एक लीडर है, वो लीड करता है। नवीन प्रकाश जी जहानाबाद बिहार से जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका भी। वो रोल मॉडल है, वो कोलैबोरेटर है, कोलैबोरेट करता है, वो टीम में काम करता है, वो रिस्क टेकर भी है। वो ये नहीं कि जी मुझे तो इसी गांव में रहना है, मैं तो 20 साल हो गए, आई डोंट वांट टू चेंज माई सेल्फ। अब आप मुझे कंप्यूटर नहीं सिखा सकते जी, आई एम ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, 5 साल बचे हैं मेरे, नहीं। मुझे लग रहा है जो टीचर्स 50+ हैं उनको ज्यादा जरूरत है, उनके लिए कंप्यूटर सीखना, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना, आईसीटी टूल्स यूज करना, एआई टूल्स यूज करना उनके लिए बेहद ही जरूरी है। तो प्लीज अपने आप को अपडेट करिए, अपने आप को अपस्किल करिए। हैप्पी क्लासरूम होगा, नहीं तो आप असुरक्षित महसूस करेंगे। आपको लगेगा हल्का। हेरिटेज स्कूल अर्जुनपुर बक्सर से जुड़े हमारे पास। बक्सर का नाम किताबों में पढ़ा है, लेकिन आज मैम जुड़ गई है तो अच्छा भी लग रहा है। ठीक है। जैसे आपने क्लास को हैप्पी क्लासरूम बनाया, बिल्कुल मैं आपसे मुखातिब होऊंगा थोड़ी देर के बाद, वेट करिएगा।
देखिए, आइए पेरेंट्स को निपटा देते हैं, पहले पेरेंट्स की बात करते हैं हम लोग। ऑल पेरेंट्स वांट दैट देयर चाइल्ड शुड डू वेल इन स्कूल, बी इंटेलेक्चुअली क्यूरियस, मोटिवेटेड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड हैव अ स्ट्रांग डिजायर टू अचीव। मुझे लग रहा है आप लोग इस चीज से तारुफ रखेंगे। हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा कुंदन कुमार जी, कि वो ओलंपिक में चला जाए, मनु भाकर से भी ज्यादा मेडल लेकर आए, वो सोचता है। और बच्चे के अंदर वो वाली क्वालिटीज है नहीं। तो हमें एक 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 बैलेंस बनाना है, हमें पेरेंट्स को ये समझाना है कि भाई आपका बच्चा जो है वो इस लेवल का है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। हम लोग बात कब करते हैं? ड्यूरिंग पेरेंट टीचर मीटिंग। हम बताते हैं जी मेरा कहना नहीं मानता, मुझसे बात ही, मेरी तो बात ही नहीं सुनता जी ये तो। और एक 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 छोटा सा, लेट्स यूज ह्यूमर हियर। एक एक टीचर ने एक पेरेंट को फोन किया, जी आप राहुल की मम्मी बोल रहे हो? राहुल की मम्मी ने कहा जी मैं तो राहुल की मम्मी बोल रही हूँ। बोले जी आप एक बार स्कूल आ जाइए। बोले जी क्यों? बोले राहुल मेरी बात नहीं मानता, मेरा कहना नहीं मानता, होमवर्क करके नहीं लाता, शरारत करता रहता है, और पानी पीने बाहर चला जाता है, क्लास में दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करता है। राहुल की मम्मी का जवाब सुनिए, उसने कहा है मैडम जी ये सारी हरकतें राहुल घर पे भी करता है, मैंने तो आपको कभी अपने घर नहीं बुलाया। तो पेरेंट्स भी इस चीज से पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं, वो परेशान है। आप हैप्पी क्लासरूम के कॉन्सेप्ट को नहीं ला सकते विदाउट द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स। रंजना मैम, बिल्कुल सही है। वो पेरेंट्स ये सोचते हैं जी हमने तो आपके स्कूल में एडमिशन करवा दिया ना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे में चमत्कार लाइए आप रातों रात। ऐसा नहीं कि वो टीचर इज गोइंग टू द क्लास विद अ होली कमंडल और उसमें होली वाटर है और बच्चों के ऊपर छिड़का उसने और बच्चों में एकदम अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन आ गया। दिस इज नॉट पॉसिबल, नहीं है। आप पेरेंट को बताइए जी आपका बच्चा जब मेरे पास आया था 35% आते थे उसके, नाउ ही हैज रीच्ड अप टू 55%। ये खुशी होगी। अब पेरेंट चाहता जी हमारे 95% आए, नहीं आएंगे, नहीं समझेंगे। योगेश कुमार दीक्षित जी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है यू विल बी एबल टू कन्विंस द पेरेंट्स, आप समझा पाओगे उनको। आइए थोड़ा सा देखिए, ये तो एक सिंबल है, डोंट टेक इट एज अ रोल मॉडल। 1969 मीन्स ओल्डन टाइम्स, कीर्ति कुमारी जी। the parents they are scolding the child, the teacher is relaxed here। पहले वाले पिक्चर में देखिए, इधर देखें, ये जो मैं एरो लेके जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं एक्सप्लेन दीज बैड ग्रेड्स। बताइए आज के माहौल में क्या करें? एक्सप्लेन दीज बैड ग्रेड्स, द टीचर इज बीइंग क्रूसिफाइड हियर, द टीचर इज बीइंग ग्रिल्ड हियर। बच्चा शान से मुस्कुरा रहा है, देखिए आप कैसे शानदार तरीके से खड़ा है। सो ये परिवर्तन आया है। द पेरेंट्स सबका, व्हाई आई हैव टेकन दिस वेरी स्लाइड हियर। टीचर्स कहते हैं कि सर हैप्पी क्लासरूम कैसे बनाए, पेरेंट्स हमारे सुनने को तैयार नहीं है, पेरेंट्स के ऐसे हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, और फिर मैनेजमेंट नहीं सुनता है सर, हमारा क्लासरूम हैप्पी नहीं हो सकता। सर पीटीएम में हम लोग डिसिप्लिन की टेबलेट लेके जाते हैं सर। सर मैं तो छुट्टी ले लेती हूँ जब भी पीटीएम होती है, मुझे पता है। हाँ पता होता मुझे कि पेरेंट्स आएंगे बड़े लड़ाकू हैं, कई ऐसे पेरेंट आते हैं चाचा विधायक है हमारे, क्या करोगे आप? दिक्कत है। फिर पेरेंट्स डिस्क्रेडिट पेरेंट्स हैं भाई, वो बच्चे के सामने कहते तुम्हारे टीचर को कुछ नहीं आता, कैसे बनाओगे हैप्पी क्लासरूम, बना लो ना। नहीं बना सकते। आइए फटाफट हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू हैंडल द पेरेंट्स, फिर हम लोग बात करेंगे। सो स्कूल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाइए, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन इंक्रीज करिए, इन्वॉल्विंग मोर पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स इन कमिटीज एंड डिसीजंस, offering volunteer opportunities for parents and community members, sharing resources on how to support student learning at home। पेरेंट्स बेचारे पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, उनका माइंडसेट ऐसा है, एक एक औलादे आजकल एक एक बच्चा है, वो सोचते हैं कितना ही पैसा खर्च हो जाए हम बच्चे में बिल्कुल ऐसा चेंज लाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। आप उनको बताइए कि आपके बच्चे के अंदर एकेडमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, प्लीज उनको बताएंगे तो मुझे लग रहा है पेरेंट्स के साथ आप बैलेंस बना पाएंगे और आपका क्लासरूम हैप्पी क्लासरूम होगा। जी, strategies to strengthen communication, be a partner with the parents, your students will benefit most if you and the parent work together as partners। Begin your communication with a positive attitude and a willingness to be partner with the parents। Get comfortable with the student and with the parents। आप थोड़ा सा डिप्लोमेसी से बात करिए उनसे, उनको बताइए, सीधी बात ना कह के थोड़ा सा अलग तरीके से बात करिएगा। आप बताइए इट्स नॉट दैट योर सन इज बैड, ही जस्ट एक्सीड स्टैंडर्ड्स फॉर मिसचीफ। थोड़ी सी बात को घुमा के कह दिया। सो अ लिटिल डिप्लोमेसी and a little wordplay will save you on the part of, so far as the parents are concerned। Help parents feel welcomed and valued।
welcome parents to play an active role, build community among parents, send out a family interest inventory. कम्युनिकेट करिए, देखो मैं बार बार कम्युनिकेशन पे फोकस कर रहा हूँ. रिमेंबर द स्मॉल डेली इंटरेक्शंस आल्सो, फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू रिकनेक्ट. बच्चे के लिए केयरिंग स्टेटमेंट्स यूज करिए, दोनों खुश रहेंगे, आपके बच्चे विल आल्सो फील हैप्पी देयर इन द क्लासरूम एंड द पेरेंट्स विल. देखो बच्चा जो जाके घर पे बताता है ना, वही चीज होती है कि हमारी मैम बहुत अच्छी है. वो बड़ा एक्सेप्टिंग सा माहौल रखती है क्लासरूम में, कम्युनिकेट करवाती हैं. सो योर चाइल्ड मैटर्स, योर चाइल्ड सक्सेस इज इंपॉर्टेंट, आई केयर अबाउट योर चाइल्ड सक्सेस, योर चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट, हाउ कैन वी इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ योर चाइल्ड. अगर ये चीजें आप लोग पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे, आप सीधा, हम लोग क्या करते हैं, फोन करते हैं जी, आ जाइएगा स्कूल में, आपके बच्चे ने ये ग्लास तोड़ दिया है जी, ये विंडो पेन को इसने मुक्का मार दिया. आप स्कूल लेवल पे सुलझाइए बहुत सारी चीजों को, हैप्पीनेस आएगी. पेरेंट भरा हुआ आता है वहां से, उधर पेरेंट ने पेट्रोल छिड़क रखा है, इधर आपने छिड़क रखा है. जरूरत क्या है? शांत करने की, माचिस दिखाने की नहीं है. मुझे पता है आप लोग माचिस की बात कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द की पॉइंट्स फॉर क्रिएटिंग हैप्पीनेस इन द क्लासरूम. हमें करना क्या है? जनरेटिंग एंड एक्सटेंडिंग आइडियाज, suggesting hypothesis, applying imagination, looking for alternative innovative outcomes in any activity. अगर हम लोग ये वाली स्ट्रेटजी अपनाते हैं, आई थिंक देयर विल shall be able to bring an element of happiness in the school and classroom. Get ideas from other teachers. कई बार हमें लगता है मैं क्यों पूछूं, मैं बहुत सीनियर टीचर हूँ, अगर मुझे ये चीज पूछनी होगी तो आई शैल नेवर डिस्कस दिस थिंग, नहीं तो मेरी असलियत सामने आ जाएगी. प्लीज डोंट थिंक लाइक दिस. हमें दूसरे टीचर्स के नॉलेज का, उस उनकी स्किल्स का, उनकी एक्सपर्टीज का सम्मान करना चाहिए. देयर इज नो हार्म इन इट. अगर आपको कोई पोएम समझ में नहीं आ रही है, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द आइडिया फ्रॉम फ्रॉम अ पोएट्री, गो टू योर सीनियर, गो टू योर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बात करिए उससे. आपके आप एक टीचर ऑफ इंग्लिश हैं, सोशल साइंस का चैप्टर नेल्सन मंडेला आ रहा है आपके यहाँ, आप जाइए ना. ज्योग्राफी का चैप्टर आ रहा है कोई आपका, आइसबर्ग वाला, आप पूछिए ना ज्योग्राफी टीचर से, क्यों शर्म कर रहे हैं आप? अगर कंप्यूटर टीचर हैं आप, उसमें लाइफ स्किल्स आ रही हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आ रही हैं, आप जाइए ना लैंग्वेज वालों से पूछिए. हिंदी टीचर है, कोई इस तरह की चीज आ रही है जो उनको दिक्कत आ रही है, तो आपस में बात करके उन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो इफ यू आर एबल टू गेट आइडियाज फ्रॉम अदर टीचर्स, आई थिंक यू शैल बी एबल टू ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस देयर इन द क्लासरूम. हेल्प योर स्टूडेंट्स टू सी देयर ओन कैपेबिलिटीज. देखो हर स्टूडेंट के अंदर कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर एक स्किल छुपी हुई, प्रतिभा छुपी हुई है, उसको सामने लाइए. एवरीवन हैज समथिंग दे आर गुड एट, एंड एवरीवन इज नेचुरली ईदर मोर काइनेस्थेटिक, auditory, visual, or logical in their learning techniques. Help and encourage your student to use or see their abilities, which will put a positive effect on their learning, and they will feel more comfortable with homework और एक्टिविटी टास्क. आएगी हैप्पीनेस. कई कई ये क्यों ली मैंने स्लाइड, कई टीचर कहते हैं सर हमारे बच्चे है ना होमवर्क नहीं करके लाते हैं. वो निवेदिता मैम, क्या निवेदिता मैम अग्रीज विद मी? बिल्कुल, वो ये वाली चीज अपनाइए. हैप्पी टीचर्स क्या करते हैं? दे क्रिएट अ कंपैशनेट एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट. बच्चों की भावनाओं का आदर करिए. मैं बता रहा हूँ आपको, और कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, कोई बहुत बड़ा इस तरह का कोई जादुई छड़ी नहीं होगी कि पता नहीं. जमशेदपुर से हमारे साथ अजय कुमार जी जुड़ गए हैं. गुड इवनिंग सर, थैंक यू. अजय जी आपका स्वागत है. यू मस्ट प्रेजेंट विद स्टूडेंट्स आइडियाज, यू मस्ट एक्सेप्ट देयर आइडियाज. उनके आइडियाज वेग हो सकते हैं, उनके आइडियाज थोड़े से absurd हो सकते हैं, एकदम से डिस्कार्ड मत करिए ना. नए बच्चे हैं भाई, दूसरी पीढ़ी है, ये जेन जी है, इनका सम्मान करिए. एनकरेज ऑटोनॉमी, रीवर्ड असाइनमेंट्स टू प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग, गिव स्टूडेंट्स डायरेक्ट फीडबैक ऑन देयर क्रिएटिविटी. अप्रिशिएट करिए, बताइए उनको क्या आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, डियर चिल्ड्रन आई रियली लाइक यू, आई डोंट डिस्क्रिमिनेट. वो शो करना पड़ेगा आपको. गिव स्टूडेंट डायरेक्ट फीडबैक ऑन देयर क्रिएटिविटी, हेल्प स्टूडेंट्स नो व्हेन इट इज अप्रोप्रिएट टू बी क्रिएटिव, यूज क्रिएटिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, मॉडल्स एंड मेथड्स, channel the creativity impulses in misbehavior, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट योर स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन. हम लोग बार बार मोटिवेशन पे बात कर रहे हैं, आई हैव बीन हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून. मोटिवेट करिए उनको टाइम एंड अगेन. स्वीटी रानी हमारे साथ जुड़ी हैं पटना से, स्वागत है मैम आपका. प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट योर स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मेक इट क्लियर टू स्टूडेंट दैट क्रिएटिविटी रिक्वायर्स एफर्ट, एक्सपेरिमेंट विद एक्टिविटीज वेयर स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस क्रिएटिव थिंकिंग. उनको मौके दीजिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करिए. कई बार हम लोग क्रिएटिविटी को और हैप्पीनेस को किल कर देते हैं. कैसे? समटाइम्स वी थिंक दैट ओनली वन काइंड ऑफ टैलेंट इज देयर, केवल हमारे पास थिंक टैंक है, ये सारे बच्चे क्लास में है ना बिलो एवरेज हैं, ऐसा नहीं सोचना है. बीइंग बायस टू व्हाट यू चूज टू टीच, डोंट बी बायस. रिपीटेटिव टीचिंग स्टाइल है हमारी, उनको पता है कि करना क्या है. ये टीचर तुम्हारा बोरिंग है,
So don't be boring, don't be repetitive. A biased reaction and being negative to new ideas. Sometimes we don't accept their ideas. We are negative. कि तुम क्या बताओगे, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, तुम कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, जो मैंने बता दिया वो सही है, I'm a teacher for the last 20 years, 20 साल से पढ़ा रही हूँ मैं, बकवास मत करो मेरे सामने। ऐसा नहीं कहना हमें। वी मस्ट एक्सेप्ट देयर आइडियाज। सुनीता कुमारी लिख रही हैं प्रोत्साहित करके, बिल्कुल सही है। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, अपोज इट। कई बार हम लोग उनके आइडिया से अग्री नहीं करते तो हम लोग उसको अपोज कर देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। वी मस्ट एक्सेप्ट देयर आइडियाज, वी मस्ट हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बच्चे बड़े सेंसिटिव आजकल। हैप्पी क्लासरूम आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, मैं कितनी टेक्निक बता दूं, जब तक हम अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी आएंगे हैप्पी लर्निंग में। क्या क्या होंगे? इट कैन बी वेरी चैलेंजिंग टू अरेंज क्रॉस फैकल्टी और डिपार्टमेंटल वर्क इन स्कूल्स। Also, many teachers wanting to foster happiness in the classroom may not receive support from the head teacher. अभी किसी ने लिखा है सर, आइडियलिज्म में और रियलिटी में काफी फर्क होता है, ये उन्हीं के लिए है। कई बार मैनेजमेंट आपका साथ देता है, प्रिंसिपल आपका साथ देता है, वाइस प्रिंसिपल साथ देते हैं, आप चेंज ही नहीं होना चाहते, जी मुझे मतलब नहीं है। कई बार पेरेंट्स मना कर देते जी हमारे बच्चों को मत लेना। आई अग्री विद यू आशीष कुमार जी। स्टबर्न स्टूडेंट है, बिल्कुल होंगे सर, डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन हमारे पास हमारे तरकश में, जो मैंने कहा ना, हमारे तुड़ीर में वो सारे तीर होने चाहिए। बाहर से तो लाएंगे नहीं हम लोग। बक्सर से चंदा मैम, स्वागत है। Sometimes pedagogical barriers also. Some teachers do not feel confident in enhancing creative teaching as they feel the pressure and effects of accountability। कि यार अब मैंने अगर ये कोर्स कर लिया ना, मैं रिसोर्स पर्सन बन गया ना, मुझे बार बार कहीं जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू इंप्रूव माई सेल्फ। मैं नहीं करूंगा ये वाला कोर्स, ये भी होता है। So this barrier should not be there. How to stimulate happiness in classroom? हम लोग कैसे कर सकते हैं हैप्पीनेस क्लासरूम में? This is a scamper formula, आप अपनाइए। You may take a screenshot of it. You must substitute something, combine your subject with something else, adapt something to your subject, magnify or modify the things which are being taught by you, put it to some other use, eliminate something from it, and rearrange or reverse it. अगर आप स्कैम्पर फॉर्मूला पे काम करते हैं, आई एम श्योर you shall be, or we shall all together be able to bring an element of happiness there in the classroom. The fact that you worry about being a good teacher means that you already are one. अगर आप इस फॉर्मूला पे काम करते हैं, स्टूडेंट्स आर सो चैलेंजिंग सर, मैनी आर इंटरेस्टेड इन डिस्टर्बिंग अदर्स। देखिए बाहर से तो कोई बाउंसर आएंगे नहीं कि आप प्रिंसिपल को एक कंप्लेंट लेटर दे रहे हैं, प्रिंसिपल 3 लोगों को बुला के आपके साथ भेज रहा कि मैम जाइए सुनीता कुमारी जी के साथ जाओ और उस क्लास में खड़े रहना, अगर बच्चा कोई शरारत करे। आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको वो तरीके इजाद करने पड़ेंगे। योगेश कुमार दीक्षित जी, डिस्टर्बिंग हाउ कैन, बिल्कुल बात करेंगे हम लोग। टू बिकम अ रोल मॉडल, बिल्कुल। देखो जो स्कैम्पर फॉर्मूला हम लोगों ने बात किया था, अगर आप बोरिंग है क्लास में, नहीं सुनेंगे बच्चे, बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल या मैनेजमेंट सपोर्ट करता है जी, बिल्कुल करेगा। आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए। कुमारी इंदु बाला इज राइटिंग, स्नेह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल सही लिखा आपने। सो अगर आप अपने अंदर ये चेंज चाहते हैं कि लग रहा है चलो वन मोर क्वालिटी which will help you in bringing an element of happiness, the quality of being amusing or comic, especially as expressed in literature or speech. Humor is one instructional tool that teachers can use in the classroom to increase their effectiveness. Humor यूज करिए, आजकल मीम्स बना रखी हैं बच्चों ने, पता नहीं कौन कौन से वीडियोस बन रहे हैं, रील्स बन रही हैं, आप भी उसका पार्ट बनिए। आप अगर आउटडेटेड हैं, पुराने हैं, नहीं मानेंगे बच्चे, उनके साथ कदम ताल मिलाने की जरूरत है। यू हैव टू कीप पेस विद द स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल है। देन अगर आप बच्चों के साथ कदम ताल मिला के चल रहे हैं, तो बिल्कुल श्योरली आई थिंक यू शैल बी एबल टू ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस। एवरी टाइम यू फाइंड सम ह्यूमर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यू विन। कई बार आपको कोई गहरी बात कहनी होती है, तो आप किसकी सहायता से कह सकते हैं? ह्यूमर की सहायता से। टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई मे रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस फॉर अ हैप्पी क्लासरूम। दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था ये कि इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। सो स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू क्रिएट a happy classroom or to create happiness there in the classroom. Praise your students' efforts. The teachers need to recognize and value their students' efforts as much as possible. A little praise can inspire them a lot in their future projects. They can definitely learn the ways of resolving conflict management from their very early days. मैंने प्रिंसिपल से गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि आप अपने टीचर्स के efforts
उसको रिकॉग्नाइज करिए। सही, मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने बच्चों के प्रयासों को, वो छोटा प्रयास भले ही हो, उनको अप्रिशिएट करिए, उनको बताइए कि बेटा आई आई रियली लाइक यू एंड आई लव यू। तभी हो पाएगा हैप्पी क्लासरूम। कमांडमेंट्स ऑफ हैप्पी क्लासरूम, द वेरी फर्स्ट वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। जाके सीधा अपना चैप्टर पढ़ाना शुरू मत करिएगा कि सिलेबस कंप्लीट कराना। जी मुझे कोई मतलब नहीं, किसी के हाथ पे चोट लगी है, किसी के पापा बीमार चल रहे हैं, किसी के दादाजी की डेथ हो गई है, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, बच्चे नहीं सुनेंगे आपकी जो आपने लिखा है ना। जो टीचर्स आपको, उनके साथ एक कुमारी इंदुबाला प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा लिख रही है मैम आप, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सजेशन। आपके मैं फिर बता दूं, बच्चा बुरा नहीं होता है, हमारा व्यवहार कई बार ऐसा होता है। मैनेजमेंट को एक साइड रखिए आप मैनेजमेंट को बीच में मत ये करिए कि सर मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करता है। मुझे लग रहा है वर्ल्ड में कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं होगा जो आपको रोकता है कि बच्चों की पढ़ाई करो या उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओ। आई हैव कंडक्टेड ऑफलाइन सेशंस टुडे। मुझे में ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं मिला जो ये कहता है जी हम तो अपने टीचर्स को कम्युनिकेट नहीं करने देते बच्चों से। मैं टेकिंग द फेज, बट मैं बता दूं हम लोग क्या करते हैं, हम ब्लेम गेम खेलते हैं। हम कहते हैं जी हमारे प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है, हैप्पी क्लासरूम नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल कहते हैं जी टीचर रिस्पॉन्सिबल है। प्रिंसिपल टीचर कहते हैं जी पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है। पेरेंट्स कहते हैं जी हमारे पास टीचर अच्छे नहीं है, स्कूल अच्छा नहीं है, हम सब अच्छे हैं। जरूरत है कि जो कम्युनिकेशन गैप है ना उसको ब्रिज करने की। हैप्पी क्लासरूम अपने आप बन गया, हम लोगों ने किया। सो वेन एवर यू गो टू द क्लास फटाफट करना पड़ेगा। यू मस्ट स्टार्ट विद ब्रेनस्टॉर्मिंग, हर बच्चे को इन्वॉल्व करिए। 40 बच्चे उनसे एक एक आइडियाज लीजिए ना। आप देखना कल आप, मेरा ये सेशन है, कल छुट्टी है, मंडे को स्कूल जाए प्लीज मेरे कहने से। आप बच्चों से पूछो कि बेटा हाउ कैन वी मेक द क्लासरूम ए हैप्पी क्लासरूम। आपको यू शेल गेट वंडरफुल आइडियाज। कहना हर बच्चे को बोलना है, आगे बुलवाइए उसको। क्लास आउटसाइड द क्लास, बच्चों को बाहर लेके जाइए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आप उसको पत्ते फूलों की फोटो क्यों दिखा रहे हो? आप उसको क्लास पौधों के पास लेकर जाओ ना, समझाओ उसको ये गुलाब का फूल है, गुड़हल का फूल है, ये शीशम है, कीकर है, बेर है। बताओ ना उनको, बिल्कुल बाहर लेके जाइए। बच्चे सबसे पसंदीदा बच्चों का जो पीरियड होता है ना वो गेम्स का होता है, क्योंकि वो बाहर निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रश्मि सिंह, थैंक यू मैम। इंट्रोड्यूस लेसन्स लाइक स्टोरीज, स्टोरी टेलिंग इज अ पेडागोजी दिस डेज, सीबीएसई ने भी किया है ये। हम लोग एक पेडागोजी ही बन गई है जो स्टोरी टेलिंग है, उसको विचार व्यक्त करने का साधन होना चाहिए। हाँ, वो आप स्टोरी की तरह, आप चाहे मैथमेटिक्स टीचर है, फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, बेहतरीन तरीके से इन्वॉल्व करने की टेक्निक्स आनी चाहिए। यू मस्ट इंटीग्रेट आईसीटी इन योर टीचिंग। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए आपको, बच्चों के साथ कदम ताल मिलाने के, उनके साथ कदम ताल मिलानी है आपको, और आपका क्लासरूम हैप्पी क्लासरूम बनेगा। फॉर्म क्लब्स एंड ग्रुप्स फॉर इनोवेशन, इनोवेटिव टीचिंग करवाइए, एनकरेज करिए स्टूडेंट्स को। रश्मि रंजन इज राइटिंग, नीतू कुमारी इज राइटिंग नाइस सेशन सर, नाइस सेशन बाद में लिखेंगे। ज्योति झा आउटस्टैंडिंग सेशन लिख रही हैं। अच्छा लग रहा है मुझे, देखो आप प्रेज कर रहे हो और मेरे अंदर मोटिवेशन आ रहा है। यही चीज है। I'm acting as your teacher today and you people are students। ऐसा नहीं सोचना है। I'm also co-learner, मुझे बहुत अच्छी चीजें आप लोगों से सीखने को मिल रही उधर। फॉर्म क्लब्स एंड ग्रुप्स फॉर इनोवेशन, अडॉप्ट एंड एनकरेज कोलैबोरेशन, टीम वर्क को आप प्रभावशाली बनाइए, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाइए। एक जन तो मिला हमें, इसमें हम लोग अपनी स्नॉबरी में रहते हैं जी। मैं तो आई एम डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर, आई नेवर गेट मिक्स्ड अप विद द चिल्ड्रन। मैं कभी नहीं जाती जी उनसे, मैं बात ही नहीं करती। क्या पढ़ा पाएंगे आप? नहीं पढ़ा पाएंगे। इन्वॉल्व होइए, टीम वर्क को बढ़ावा दीजिए। एंड दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला माय डियर टीचर्स। पढ़िए, लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। अगर ये वाली अप्रोच हमारी रहती तो आई एम श्योर वी शैल बी एबल टू ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस देयर इन द क्लासरूम। आपका रोल एज ए टीचर क्या रहेगा? बी ड्रामेटिक एंड विजुअल। आज के जमाने की बड़ी डिमांड है ये, आपको ड्रामेटिक और विजुअल होना पड़ेगा। यू मस्ट सिंग सॉन्ग्स, यूज पेयरिंग वर्ड्स विद मैचिंग पिक्चर्स। लिटिल प्लेज आर अ फन वे टू रीइंफोर्स लैंग्वेज स्किल्स। स्टोरी टेलिंग एंड आस्किंग द स्टूडेंट्स टू नरेट स्टोरीज फॉर क्लोज, उनको बुलाइए। यू मस्ट गिव अ प्लेटफॉर्म टू द चिल्ड्रन। एक्टिंग हेल्प्स इन रिकॉलिंग अ लैंग्वेज एंड लर्निंग इट फास्टर। एक्टिंग करवाइए, ये आर्ट इंटीग्रेशन आ गया, ये मान के चलो। ट्राई एन अप्रोच कॉल्ड लेयर्ड क्वेश्चनिंग, ये लैंग्वेज में काम आएगी। फ्रेम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफिशिएंसी ऑफ द लर्नर्स। as their proficiency grows, either or questions may be used or expand to open-ended questions। आपका हैप्पी क्लासरूम कैसा होगा? You must establish a distinct classroom routine with your students,
It will help them know exactly what to expect. You must use positivity and reward. You have clear rules and boundaries. Practice what you preach. Student voice must be given priority. Fun and engagement अगर आप involve करते हैं, तो I'm sure you shall be able to bring an element of happiness there in the classroom. आप बिल्कुल लेकर आ पाएंगे वहां पर. Then you must greet students at the door. छोटे बच्चों के लिए है ये techniques. The teachers who deal with primary section, they are the frontline soldiers मैं ये कहूंगा. उनके ऊपर पूरे दारोमदार रहता है, वो बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं. Establish, maintain and restore relationships. Use reminders and cues. Optimize classroom sitting. Give behavior specific praise as well. You must encourage all the people. Listen to them and respect their ideas. And even if you don't agree with them, third point very important. तीसरे वाले पॉइंट को पढ़ें, उनको सुनिए, उनको you must give an ear to them. Be a role model and make success about their learning and not your teaching. ये नहीं कि मैं I'm the best teacher. No, आप कहो I have the best students. अगर हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे, मैंने आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई है. मैंने जो मेथड्स बताए बहुत महंगे नहीं है कि आप बाहर से लाने पड़ेंगे. जी आपको पटना जा रहा हूँ जी मैं तो खरीदने ये वाले मेथड्स. नो, ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज करना. आप किसी गांव ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाते हैं, आप किसी शहर में पढ़ाते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में पढ़ाते हैं, आप पटना में हैं, बक्सर में हैं, गया में हैं, आरा में, कहीं भी पढ़ा रहे हैं आप एक एक एक्सेप्शनल टीचर बनिए ना. बी ए रोल मॉडल. कुछ भी नहीं लगेगा. वो होता है ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, वही वाली चीज है जी. मेक सक्सेस अबाउट देयर लर्निंग एंड नॉट योर टीचिंग. द फैक्ट, मैं बार बार उस चीज को दोहरा दूं, द फैक्ट दैट यू वरी अबाउट बीइंग अ गुड टीचर मींस दैट यू ऑलरेडी आर वन. सो डियर टीचर्स, यू आर द बेस्ट टीचर्स. वी हैव बीन टचिंग द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स देयर इन द क्लासरूम. हम लोग स्पेशल हैं, और हम लोग ऑल टुगेदर वी शैल बी एबल टू क्रिएट अ हैप्पी एनवायरनमेंट. वो हैप्पीनेस हम का लेकर आएंगे. ये हमें प्रण करना होगा. ये नहीं फॉर द सेक ऑफ द मैनेजमेंट, प्रिंसिपल को खुश करने के लिए मैनेजमेंट को. नो, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए. दिस बेस्ट लाइव एवर, आई थिंक इट्स अ प्रेजेंटेशन बाय राजन कुमार शर्मा. I'm sure you people, please, you are muted. किसने म्यूट किया मुझे? लेट मी चेक. Dear teachers, could you write one takeaway there in the chat box? एक चैट बॉक्स में एक टेक अवे लिख दीजिएगा. आज का आपने सीखा क्या? आपने सीखा क्या? What did you get out of today's session? Please. नाइस सेशन मत लिखिए प्लीज. यू मस्ट थैंक पाटलिपुत्र सहोदय कॉम्प्लेक्स, भारती देवी जी. उनको उनको थैंक यू बोलिए प्लीज. देखिए, जोमेटो और जोमेटो में होता क्या, जनरली स्विगी जोमेटो में डिलीवरी बॉयज होते हैं. तो मैं आई एक्टेड एज अ डिलीवरी बॉय. मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था, बट पाटलिपुत्र सहोदय कॉम्प्लेक्स, इट डिजर्व्स कुडोस फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन. अगर ये सेशन हो पाया है तो ये उन्हीं की बदौलत है. मेरा कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है. they really means did hard work. उन लोगों के प्रयासों से ही हो पाया ये. So this was the voice behind the screen. Now I think I'm visible to you also. If you have any question, any queries are there, you may write those queries there in the chat box. अच्छा लगा. Literally, I enjoyed the session. पता ही नहीं चला 1 घंटा कब बीत गया. People have been endowed with certain attributes. भगवान ने हमें विशेष शक्तियां दी हैं. उन शक्तियों का प्रयोग करिए. क्लासरूम के हीरो हीरोइन बनिए. अपने आप हैप्पीनेस आएगी.
हमें किसी को खुश करने की जरूरत ही नहीं है फिर। द लिंक हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड, आई थिंक। कुड यू प्लीज राइट वन टेक अवे, आप आज के सेशन से क्या लेकर जा रहे हैं? कहना सर सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, बाकी तो हमें कुछ समझ में नहीं आया ज्यादा। एक टेक अवे, लर्न टू बी अ फ्रेंड, बच्चों से जुड़ना, ज्योति मैम, साइबर, हैप्पीनेस, थैंक यू, कोई तो थैंक यू भी लेके जा रहा है, ग्रेट। दीपक कुमार सेशन गिव्स, शारदा थैंक यू, ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस, डॉक्टर अभिषेक सिन्हा, हैप्पी क्लासरूम, थैंक यू सो मच। अंजनी कौशिक, सर्टिफिकेट्स ओनली along with happiness, friendly behavior। राज्य लक्ष्मी, बहुत अच्छा रहा, आशीष कुमार जी लिख रहे हैं। देखिए, आप जुड़े रहिए बच्चों से, अपने साथियों की भी कॉर कॉम्पिटेंसीज को समझिए। अभी 1000 लोग जुड़े हैं, मुझे बशीर बद्र साहब की एक गजल याद आती है, हम लोग कोशिश नहीं करते एक दूसरे को समझने की, हम लोग अपने अपनी स्नोबरी में रहते हैं। अगर हम लोग बच्चों को भी समझें, अपने कॉलीग्स को समझें, हम अपने मैनेजमेंट को समझें, तो आई थिंक वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज, एंड दैट विल रियली श्योरली कंट्रीब्यूट टू हैप्पीनेस देयर इन द क्लासरूम। वो गजल कुछ इस तरीके से है कि आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। और ये जो लास्ट की दो लाइंस लिखी हैं बशीर बद्र साहब ने, क्या कमाल लिखा है, वो हम सब टीचर्स के लिए ही लिखी हैं शायद, कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छू कर नहीं देखा। हम लोग अपने बच्चों को नहीं छू कर देखते, हम लोग उनको जानने की कोशिश नहीं करते, हम अपने कॉलीग्स की जो क्वालिटीज हैं उनको जानने की कोशिश नहीं करते, हम लोग पूरी जिंदगी ऐसे बिता देते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम लोग इस तरीके से बात काम करेंगे, तो वी शैल नेवर बी एबल टू ब्रिंग हैप्पीनेस। आप एक दूसरे को समझिए, कम्युनिकेट करिए, बात करिए, अगर आपके ग्रीवेंसेस हैं, आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके विचारों में कुछ असमानता है, आप किसी दूसरे के विचार से सहमत नहीं हैं, खुलकर बात करिए। अगर हम लोग अपने ही फिर उसमें रहेंगे, सेल में रहेंगे, अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, हम लोग हैप्पीनेस नहीं ला पाएंगे। So I'm sure that you people will apply whatever has been discussed today. I'm so happy. I'm really thankful to पाटलिपुत्र सहोदय कॉम्प्लेक्स कि उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, मुझे एक चांस दिया। दो मेरे इंटरेक्शन बिहार के एजुकेटर से कोई नया नहीं है। आई हैव बीन टू पटना मेनी टाइम्स। हम लोगों ने काफी पीआरपी सेशंस किए हैं सीओई पटना के साथ मिलकर और पाटलिपुत्र सहोदया के साथ मिलकर। एंड आई एम बीइंग अ सैंग्विन, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट आगे भी हमें इस तरह के चांसेस मिलेंगे कि हम एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरेक्ट कर पाएंगे। आपसे फिर एक गुजारिश है कि आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को पहचानिए, उनमें इजाफा करिए, अपने आप को ग्रूम करते रहिए, अपस्किल करते रहिए, और कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। छोटी छोटी चीजें हम लोग अपने जीवन में अपनाकर हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं, हम लोग हैप्पीनेस ला सकते हैं। अपने पड़ोसियों का भी सम्मान करें, उनको समझिए, परिवार में भी एक दूसरे को शो करिए, बच्चों को भी आप मोटिवेट करें, अपने बच्चों को एज ए पेरेंट, आप अपने हस्बैंड वाइफ को भी अप्रिशिएट करिए उनके एफर्ट्स को। सो दिस ग्रेटिट्यूड, दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड विल also bring happiness there in the family, at the workplace and in the classroom। छोटी छोटी चीजें हैं, उनके ऊपर हम लोग कहते हैं ना, आभार कहते हैं हम लोग ग्रेटिट्यूड को हिंदी में। आभार व्यक्त करिए, आपका भार कम हो जाएगा, ये मान के चलिए। तो जहाँ कहीं भी आपको लगे कि ये मेरे सीनियर हैं, जो न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स हैं, जिन्होंने अभी पदार्पण किया है टीचिंग में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने सीनियर्स का सम्मान करें। मैं सीनियर टीचर से भी दरख्वास्त करूंगा कि अपने जो साथी लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनके अंदर दे आर ब्रीमिंग विद एनर्जी एंड आइडियाज, उनके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, उनके आइडियाज को भी समझिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखिए,
वर्क स्कूल बैलेंस, स्कूल की बातें घर पे मत लेके जाइए। ये नहीं कि आप स्कूल से लड़ कर आए मैनेजमेंट से, घर में आके झगड़ा कर रहे हो, ऐसा ना करें। या घर वाइस वर्सा, घर में झगड़ा होकर गया, स्कूल में बच्चों पर आप निकाल रहे हो, नो। एक टीवी में ऐड आ रहा है आजकल, देखा होगा आपने, किसी एक प्रोडक्ट का है। उसमें एक बुजुर्ग सी महिला है, वो कहती है इस हॉस्टल में 400 बच्चे नहीं, 400 माँओं का विश्वास रहता है। तो हमारे क्लासरूम में भी पता नहीं कितने माँ बाप का विश्वास रहता है वहां पर। वो हमारे भरोसे छोड़ते हैं, उनको विश्वास है कि वहां पर जोर सर हैं, वहां पर कलश कुमारी जी हैं, प्रिया कौशल हैं, या और बाकी नंदलाल जी हैं, तो हमारा बच्चा सेफ है। वही चीज हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करेगी। मैं फिर बता दूं, हम लोग साधारण नहीं है, हम टीचर्स हैं, हम लोग असाधारण हैं। हम लोग बच्चों के जीवन को पता नहीं किस हद तक प्रभावित कर रहे हैं। वो बच्चों की जिंदगी में परिवर्तन लाते रहिए, अपने आप को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करते रहिए, एंड आई एम श्योर हैप्पीनेस कोई बहुत बड़ी, इट्स नॉट अ फार क्राई, बाहर से नहीं आएगी, हमारे अंदर से ही आएगी। एंड वी शैल बी एबल टू मेक अ हैप्पी सोसाइटी। हम लोग एक खुशनुमा परिवार बना पाएंगे, खुशनुमा पड़ोस होगा हमारा, खुशनुमा वर्क प्लेस होगा, और खुशनुमा हमारा क्लासरूम होगा। शैल वी कॉल इट अ डे? हम लोग नमस्ते कहें एक दूसरे को, और समथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड? दिख नहीं रहा होगा मुझे लग रहा है, हम क्लियरली विजिबल और नॉट। आपने टेक अवेज नहीं लिखी, यू डिड नॉट राइट द टेक अवेज। थैंक यू लिखा आपने बस। यू मस्ट थैंक पाटलिपुत्र सहोदय ऑल्सो। इट्स रियली अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। हालांकि आपके माइक्रोफोन नहीं खोले थे क्योंकि हमारे पास लिमिटेशंस थी। हमारे पास अराउंड 2000 एजुकेटर्स थे, तो हम लोग परमिट नहीं कर सकते थे सबको। तो I'm sure we shall arrange some more sessions in the time to come as well for you people. So please, वो एक जो एक लर्निंग की जो एक भूख है ना, उसको जगाए रखिएगा, उसको मरने मत देना। आप चाहे उम्र के किसी पड़ाव पर हैं, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। बी ए कांस्टेंट लर्नर, एंड आई एम श्योर हम लोग बिल्कुल हैप्पी क्लासरूम क्रिएट कर पाएंगे। भारती कुमारी इज आस्किंग फॉर अटेंडेंस लिंक। ओ, थैंक यू पाटलिपुत्र सहोदय आदित्य कुमार इज राइटिंग। यस सर, वी विल डू इट। ज्योति झा मैम, यू आर आस्किंग फॉर द अटेंडेंस लिंक, आपने टेक अवे नहीं लिखा। टेक अवे का मतलब आपकी लर्निंग क्या रही? सिंगल टेक अवे, प्लीज सेंड अटेंडेंस लिंक, ये टेक अवे है भारती जी आपका? रोमिका भारती, अनामिका यादव, इंफॉर्मेटिव सेशन, नमस्ते सहोदया, वाह,